السلام علیکم ناظرین کم تو 4 بجے تو قشر خبرنامہ ہیس ساحل امین تہندس خدمتس من حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل وزیر صحت سکینہ یتون آج گورنمنٹ میڈیکل کالج تو میٹرنٹی ہسپتال اننت ناگ دور کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ محکمہ صحت دیم افسر تہ موجود دورس دوران یہ تمو مریضن ہز خبر اتر تب تمو ہسپتال انتظامیہ طرف کرنے آمتن انتظامن ہز سام ہتمت یل زن تمو ذمہ دارن وون تم گھن ہسپتالس مز معقول انتظام کریں یت زن اور ین والن مریضن تو تیماردارن کن قسمک مشکل ویپرن پین ایل ڈی منوج سنہا آج ہمام برگمس مز بی ایس ایف کس پروگرامس دوران وونمت ملٹنسی ہند مقابلہ کرنے باپت نو حکمت عملی ترتیب دن آمت یت زن ات پہ روٹ لاگنس مز آسانی سپدے یل زن تمو وون ملٹنٹن معاونت کرن والن خلاف تھی سخت کاروائی عمل من ان اس کی ایک مہتوپورن بھومکا رہی ساتھیوں بھارت ورش ہمیشہ سے شانتی پورن استھت اور آپسی سدبھاؤ کے مولیوں کو پوری دنیا میں پھیلانے کا کام کرتا رہا ہے. ہم دربھاگیہ سے ہمیں ایک ایسا پڑوسی ملا ہے جو آزادی کے بعد سے ہی نرنتر جموں کشمیر میں آتنکوادی گتیویدیوں کو انجام دے رہا ہے. ہمارا پڑوسی چاہے غریبی اور حکمرانی سے بھلے ہی اس کے ناگرک بے حال ہیں لیکن آتنکی اور نارکوٹکس بھیجنے کی اس کی ناپاک حرکتیں بدستور جاری ہیں. حال ہی میں پڑوسی ملک دوارا پوشت آتنکیوں نے پچھلے سپتاہ کئی گھٹنائیں کی جس میں ہمارے کچھ آرمی کے بہادر جوان ہمارے کچھ ناگرک انفراسٹرکچر پروجیکٹ میں کام کرنے والے کچھ ساتھی اور باہر سے آئے ہوئے کچھ مزدور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. ان کے بہے خون کے ہر ایک قطرے کا حساب سیکورٹی فورسز نے ایسا آواہن سب کو کیا گیا ہے. ایسی استھتی میں بھارت کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس کو اور ادھک مستعدی سے اپنے کرتبیوں کا نروہن کرنا ہوگا. ہر ایک جیون انمول ہے اور آتنکواد میں بھی ایک ہی جنہان عوام اور راشٹر کے لیے سب سے بڑی کھیتی ہے. ہمارا لکष्य ہونا چاہیے آتنکواد کو جڑ سے سماپت کرنا تथा ہر ایک ناگرک اپنے سپنوں اور آکانکھاؤں کو پورا کر سکے. ایسا واتاورن بنانے میں بارڈر سیکورٹی فورس نے سدیو اپنی بھومکا کا نروہن کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں آنے والے بھوشیہ میں بھی پوری مستعدی سے اس ذمہ داری کا نروہن میں آپ سب کریں گے. عوام کو بھی بھروسہ ہے ہمیں دینا ہوگا کہ آتنکوادیوں اور ان کے سپورٹ اسٹرکچر کے خلاف پربھاوی نرنتر سطت کارروائی چلتی رہے گی تथा ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے دوارا اپنی پوری क्षमता کا اپیوگ کر کے آتنک کے ایکو سسٹم کو نشٹ کرنا ہمارا پرتھم کرتویہ ہوگا. بارڈر سیکورٹی فورس آرمی پولیس تथा अन्य ایجنسیوں کے آپسی سمنوے سے آتنکواد ورودھی گرڈ کو مضبوط کیا جا رہا ہے. انفلٹریشن کو روکنے کے لیے بہوآیامی رننیتی بنائی گئی. ان سبھی ابھیانوں میں بارڈر سیکورٹی فورس کا اتنت مہتوپورن یوگدان ہے. آپ نے جس پرکار اتیت میں آوشکتا پڑنے پر پوری دক্ষتا اور کشلتا کے ساتھ کاریہ کیا ہے ویسے ہی آپ سبھی کو راشٹر کے ہتوں کی رکشا کے لیے سنکلپت ہو کر بھوشیہ میں بھی اس فورس کے گورو کو آگے بڑھانا. جس پرکار آرمز اور ڈرگس کی اسمگلنگ کی جا رہی اسے پربھاوی طور پر سماپت کرنے کے لیے تکنیکی क्षमता بڑھانی ہوگی. جوانوں کو نرنتر ٹریننگ پردان کرنی ہوگی. ڈرگ اسمگلنگ سماج کے تانے بانے کو پوری طرح سے نشٹ کر رہا ہے اور آج ٹیرر فائنینسنگ کا سب سے بڑا ذریعہ بھی بنتا جا رہا ہے. مجھے بھروسہ ہے نارکو ٹیرر نیٹ ورک کو پوری طرح سماپت کرنے میں بھی بارڈر سیکورٹی فورس اور अन्य ایجنسیاں مل کر کے کام کریں گی. آج کے تیزی سے بدل رہے دور میں ہمیں سیماؤں پر کرمنل اور اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز کے ایمرجنگ ٹرینڈز پر بھی وشیش دھیان دینے کی آوشکتا ہے تاکہ ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ دوارا بھوشیہ کی چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں.
इंटेलिजेंस शेयरिंग तथा एरिया डोमिनेशन, इन दोनों रणनीतियों पर भी निरंतर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करनी होगी। अब मैं ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिन 9 आरक्षकों को मेडल से सम्मानित किया गया है, हुमाम बर्गन इन BSF ट्रेनिंग सेंटर्स में आज पासिंग आउट परेड प्रोग्राम करना आमुत यथ LG मनोज सिन्हा BSF के जिम्मेदारों फौजी अहदेदारों अलावा एहलकार शिरकत कर आज मौके पर ये ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले जवानों की पासिंग आउट परेड सपुत तक BSF जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दरअंदाजी ही कोशिश नाकाम करने बाबत BSF के फौज तरफ मुश्तरक पट सरहदन पर मजीद चौकसी बढ़ाना आमुत जिस दिन पासिंग आउट परेड में शमूलियत करने वाले जवानों तरफ खुशी इंतजार करान वन आवज मुल्क की हिफाजत यकीनी बनाने में करन के पन अहम रोल अदा। बैट संख्या 124 बाटन नंबर 3 के कमान संभाले हुए हैं नव आरक्षक देश की निवास पैनल के निवासी हैं और उसका साथ ले रहे हैं नव आरक्षक जो कि पश्चिम बंगाल के जिला पश्चिम बंगाल जिले के निवासी हैं। आज SPC कश्मीर के लिए एक बड़ा गौरव का दिन है। ऑनरेबल LG साहब जम्मू एंड कश्मीर ने आज यहाँ 629 ट्रेनी जो पास आउट कर रहे थे उनके दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट किया। मुख्य अतिथि के रूप में आए और हमारे बहादुर जो सीमा प्रहरी अभी नए आ रहे हैं उनका हौसला अफजाई की। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं मुख्य अतिथि से। और ये जो ट्रेनिंग है 629 ट्रेनिंग इनको इनके ट्रेनर्स ने BSF की ड्यूटीज में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसमें PT ड्रिल फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स वेपन उसकी सभी बड़ी अच्छी सिखलाई दी थी। और अब ये सारे 629 जवान डिफरेंट फ्रंटियर में जाके जो BSF की रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उनको बड़े अच्छे से निभाएंगे। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में लेकिन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है और इस तरह के जिस तरह की थ्रेट्स हैं उसमें थ्रेट एनालिसिस करके हम देख रहे हैं कि इस तरह की इंसिडेंट आगे ना हो। इस विंटर से पहले थोड़ी कोशिश होती है लेकिन हमारी LC के सिक्योरिटी ग्रिड आर्मी के कोऑर्डिनेशन से बड़ी स्ट्रांग है एंड विल एंश्योर दैट इन्फिल्ट्रेशन की किसी भी तरह के अटेम्प्ट होते हैं तो हम उसको स्पॉट करें। सोल्जर का आज ये बहुत खास दिन होता है, पूरे लाइफ का एक ऐसा मोमेंट होता है इससे ज्यादा खुशी का दिन किसी एक सोल्जर के लिए नहीं हो सकता। आज ये कसम लेता है कि मतलब हम देश के लिए जो बचपन से सपना देखते होते हैं उसको वो करता है, शपथ लेता है। ट्रेनिंग के दौरान हमने वेपन हैंडलिंग फील्ड क्राफ्ट बहुत सारे टैक्टिक्स सारे ड्रिल वगैरह बहुत सारे चीजों का फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा जोर जैसे कि हमें सिखाया गया। हमें बहुत ज्यादा अंतर मतलब हम कुछ देर खड़े नहीं रह पाते थे स्टार्टिंग में आए थे हम कुछ देर ही, अभी इतना ज्यादा हमें फिजिकली टफ कर दिया गया है कि हम कितने देर भी खड़े हो सके, हम सीमा पे जाके खड़े होके सुरक्षा करके कि इतना हमें कैपेबल कर दिया गया। बहुत प्राउड की बात है कि हम लोग BSF में जाने के और अच्छा सेंटर मिला, हमें ट्रेनिंग सेंटर अच्छा मिला है। यहाँ हर एक चीज के बारे में बारीकी से बताया गया है। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी पे हर एक चीज किया गया सर, बहुत अच्छा लगा। अंतर रहता है जब तक टीवी में थे तब तक तो जैसे भी था वो चले जाते थे कहीं भी, अभी लेकिन डिसिप्लिन थोड़ा आ गया, अच्छे से रह रहे हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे 40 फीट का ट्रेनिंग हुआ टोटल। यहाँ पे हमें वेपन के बारे में बताया गया, फिजिकल एक्टिविटी कराया गया और BSF के कानून के बारे में पढ़ाया गया। वज़ीर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नासिर असलम मोइन आज श्रीनगर में मुनक़िद एग्जीबिशन दास्तुल तक तमो वोनमुत यम वाद लूकन सत इंतखाबन दौरान करने आमद तम वाद पूरे करने हवाले सरकार तरफ संजीदा कदम तुलने युद्धन आम लूकन राहत वाचे। यह तमो वोन सियासी लीडरों तरफ लोग गुमराह करने की कोशिश करने तो लूकन पजन यमन कथन को कान दिन। नासिर असलम वोन तो वोनमुत हिज़्ब इख्तिलाफ मेंबरन पज सरकार अखवाश करुन युद्धन सरकार लूकन हिंद मसले अंजरावनस में कामयाब सपदे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर नासिर असलम वानी साहब हमारे साथ हैं जिन्होंने आज यहाँ पे एक एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया। नासिर साहब शुक्रिया आपका। पहला कमेंट आपसे, जब हम आर्ट को देखते हैं तो किस तरह से आप फील करते हैं और जो आर्टिस्ट हमारे हैं वो क्या उम्मीदें रखते हैं इस इलेक्टेड गवर्नमेंट में
गवर्नमेंट से जो काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे तश्कील पाई है? इससे वो यहाँ गवर्नमेंट से उम्मीद रखने के लिए जमा नहीं हुए हैं, वो अपना आर्ट लोगों के पास लाए हुए हैं और अपने आर्ट से लोगों को अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये कमर्शियली इसको यहाँ जो एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को अपना आर्ट दिखाने के लिए आए हैं और इतना टैलेंट है इनके पास जो देख के आदमी खुश होता है। और मुझे वैसे भी इसके साथ थोड़ा बहुत दिली लगाव है, उस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह से इन्होंने काम किया, वो आसान नहीं है, इसमें सालों लगते हैं इस टैलेंट तक पहुँचने के लिए और बड़ी खुशी हुई इनका टैलेंट देखकर। उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली गए और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, अब मुख्तलिफ बातें उससे हो रही है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्पेशल है उस मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, ये लाजमी है कि जब स्टेट गवर्नमेंट बनती है तो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर मुल्क के वज़ीर आज़म और बाकी वज़रा से मुलाकात करते हैं। लाजमी तौर है इस स्टेट की जो मुश्किलात हैं, खासकर जो 2019 के बाद मुश्किलात हुई हैं, उनका अजाला करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाजमी तौर पर बात करनी है। स्टेटहुड के बारे में बात की गई, जो कैबिनेट ने पहला रेजोल्यूशन किया स्टेटहुड को जो है रिस्टोर करने के लिए, वो रेजोल्यूशन की कॉपी भी और उसका जो उनके साथ तबादला ख्याल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर से वो मिले और मुझे जो इत्तला मिली है कि जो उनका बड़ा फोर्थ कमिंग था। एक तो सब ने एश्योर किया है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके और हमें पूरी उम्मीद है कि स्टेटहुड भी जल्दी रिस्टोर होगा। नाज़िर साहब, जो यहाँ स्टेट आर्टिकल 370, 35 AK7 में सियासी जमातें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालिफ है, वो तनकीद नेशनल कॉन्फ्रेंस पे करती है कि जो कैबिनेट ने स्टेटहुड रेजोल्यूशन पास किया, बेहतर था कि आर्टिकल 370, 35A पे, आल्दो कि आपका उस पर रिस्पॉन्स आया है, फिर भी जाना चाहेंगे। देखिए जनाब, बहुत जल्दी कर रहे हैं वो, अभी जुमा 8 दिन में हुए सरकार को बने हुए, सब कुछ 8 दिन में हो नहीं सकता। हम वादाबंद हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में अपनी बातें की हैं वो हम ज़रूर अमलाएंगे और उनको ज़रूर पूरा करके देंगे लोगों की उम्मीदें हैं और जायज़ है, उनका हक है उम्मीदें रखने का। उन्होंने अपनी सरकार चुनी है, इतना अच्छा मैंडेट दिया है और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि वो किसी भी गलतफहमी का शिकार ना हो। अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, लेकिन कोई वक्त आता है कि जब उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो भी जो है मिल के साथ निभाएं, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है और ये सरकार के लिए नहीं, सबके लिए है, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए है कि हम यहाँ स्टेटहुड रिस्टोर कराएं। हमसे जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज जो हमारे पास थी, वो जो 2019 में छीनी गई, वो हम वापस हासिल कर सकें। ये सबके लिए एक मिली जुली परेशानी है और इसको हमने मिलकर करना चाहिए। उम्मीद उनसे ये कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो सब्र करेंगे कुछ देर, क्योंकि जैसे उन्होंने शुरू किया है बोलना, थोड़ा लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि उनकी जो है बातों पे ना जाए, आप एतमाद रखें सरकार पे, हम जरूर उनके वादों पे पूरा। इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने के बाद ही यहाँ टारगेट किलिंग की एक फ्रेश वेव स्टार्ट हुई है, आप समझते हैं कि ये चैलेंज भी है और कई सारे एप्रीहेंशन भी इससे जाहिर हो रहे हैं? ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इंसानी जाने ज़ाया हो रही हैं। पिछले 30-35 साल से हम इससे जूझ रहे हैं और हम अब उम्मीद करते थे कि हम अमन का सांस ले सकें, लेकिन लगता नहीं है कि वो ताकतें जो यहाँ अमन बिगाड़ना चाहते हैं वो खामोश रहेंगे। उन्होंने फिर से शुरू कर किया है। मेरी यही गुजारिश है कि जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको दोबारा मजबूत किया जाए, उसको मुतहरिक किया जाए। हम स्टेटहुड की बात इसलिए भी कहते हैं कि क्योंकि यहाँ एक यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में दो जो है तरफ की गवर्नमेंट चल नहीं सकती। यहाँ डुअल कंट्रोल हमारे हक में नहीं है कि आप सिक्योरिटी कंट्रोल और सिक्योरिटी ग्रिड एलजी साहब देखें और बाकी सरकार उमर साहब देखें, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। उमर साहब की एक्सपीरियंस एज चीफ मिनिस्टर जो पहले भी रही है, उसको हमने इस्तेमाल करना चाहिए। उनको वो ताकत देनी चाहिए, रियासत पूरे उनके कंट्रोल में देनी चाहिए। वो यूनिफाइड कमांड को भी देख सकते हैं और पूरी रियासत को भी चला सकते हैं, ताकि हम बेहतर दिन देखें। जैसे आपने क्या यूनिफाइड कमांड की बात की, जिस तरह से 30 सितम्बर का जो ट्वीट सामने आया, उन्होंने जो तनकीद की है कि चीफ मिनिस्टर के बगैर जो एलजी ने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली, तो आपका वो तो लाजिम बात है। जब तक यूटी रहेगी वो तो वही रहेगा। तभी तो हम इतना जोर कर रहे हैं कि आप स्टेटहुड जल्दी रिस्टोर होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ये कि 4 नवंबर को एक बड़े अरसे के बाद यहाँ पे असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है, तो इंटरेस्टिंग क्या होगा? अब आप खुद देखेंगे, 4 नवंबर तक इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर असलमानी जो कि एडवाइजर है जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुख्तसर बात कर रहे थे। गुलिस्तान टीवी के लिए इमरान नाइक, विद कैमरा पर्सन फिरदौस जा।
मेंबर असम्बली करनाट जावेद अहमद मिर्चालन से इलाकन मसलन हवाले तास्करान बुनमुद्द मौजूद सरकार तरफ से करनाट टंगार तासर इंतक इलाकन मजलूकन राहत वातनावन हवाला जामिया मंसूब तैयार करने युवान युद्धन यमन इलाकन में रोजन वालन लूकन कुछ किस्म की मुश्किल बेहतरीन पैन। जहाँ तक करनाट के मसाइल की बात आपने की, इसमें कोई दो राय नहीं। करनाट चारों तरफ से मसाइल में घिरा हुआ है। खासकर इस वक्त अगर हम बात करेंगे तो विंटर शर्मा विंटर सीजन जो इस वक्त आने को है, मसाइल हैं हमारे, जैसे आप हॉस्टल की बात ले लें, राशन का मसला ले लें, तेल पानी का मसला लें, बिजली का मसला लें, तो तकरीबन मुझे लगता है इन मसाइल से करना चाहिए आवाम घेरी हुई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको इन मसाइल से निकालने के लिए इसी सिलसिले में मैंने 28 को एक हमारे नोडल ऑफिसर जिसके उनको मैंने कॉल किया है, उनके साथ मेरी लेने के लिए मीटिंग मैंने रखी है रिगार्डिंग जो भी इसी से हमारे करना है, तो उसके बारे में मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। विंटर सीजन में आप बहुत भी जानते हैं कि हमारा साधना जो है ये कट ऑफ हो जाता है। उससे ये होता है कि जितने भी हमारे जो हासिल करना की अवाम है वो तीन मुश्किलात में गिर जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हॉस्पिटल को हम देते हैं और कोई बीमार हो जाता है, अगर कोई क्रिटिकल हमारा पेशेंट हो जाता है, तो उसके लिए हमें चॉपर की जरूरत पड़ती है। मैं आपकी माध्यम से ये वहाँ से क्या देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह चॉपर सर्विस अवेलेबल करके रखूँगा। सालने के बाद जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं उनके लिए मैं NRD ऊपर बात की है, उसके लिए हम डाक मंगला बुक करके रखते हैं, सो डैट की अगर अल्लाह न करे साल बंद हो जाती तो उस दौरान हम उनको लेने के खाने पीने का राहत का इंतजाम करवा सकते हैं। उस तरीके के बाद जो डाक मंगला है उसको हमने आइडेंटिफाई करके रखा है। तो जहाँ तक राशन डंपिंग का सवाल है, जहाँ पे राशन की मैं आपको एश्योर करता हूँ कि राशन कहाँ पे रहेगा, विंटर में कोशिश करेंगे कि जो हमारा अनशूर पावर कट का जो मसला रहता है इससे भी लोगों को कम से कम यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि तकलीफ से परेशान कर सकते हैं। तो वरना अक्सर हमने देखा जाता है विंटर आता है तो पावर की जो यानी कि शेड्यूल है उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं, अनशेड्यूल कट्स हो जाते हैं। तो उस सिलसिले में आज भी आप बहुत जानते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है आने रखी हम सब ने अपने पास इसलिए खुद रखा है वो उस पर मीटिंग में क्लियर कट डायरेक्शन दी है। जो भी यानी इसमें खादी का अप्रोच या लिनियंसी बढ़ती जाएगी तो उसको हम बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, और जो भी ऑफिस इसमें परफॉर्म करेगा उसके लिए हम इनाम से वर्मिन आज कांग्रेस पार्टी तरफ मीटिंग में करना आमुत पार्टी लीडर तो वर्कर शिरकत कर रात मौके पर ये पार्टी मामलन से इन वाले पंचायती इंतखाबन हवाले का संडाल दिनाव तक वर्कर पर जोर दिन आमुत तंगसन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत किसान काम करेंगे जन पार्टी से ज्यादा खुद ज्यादा लोग शब्दन इल्जन पार्टी जिला सदर मुंजी सोशल मीडिया पर से पार्टी हवाले मदनी करने की कोशिश करने वाली युद्धन पार्टी जिलस में कमजोर शब्द ताहम से जिलस में पार्टी लीडर तो वर्कर रिलीफ मिले। सर आज जो मीटिंग हमने सबसे पहले तो मैं आपका खुशामदीद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हमारे चला जाने की कोशिश की। आज जो मीटिंग हमने यहाँ ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो मंगवाई है ये मीटिंग इस मतलब थी कि जो आगे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन आने वाले हैं इसकी तैयारी के लिए कि हमने यहाँ पर इनको सबको ताकीद की कि इसकी तैयारी करें। आगे हो सकता है इलेक्शन जैसे कह रहे हैं जनवरी या अप्रैल तक हो सकता है, तो बेहतर है कि हमने पहली मीटिंग कर ली कि अपनी अपनी जगह जो है हम तैयारी रखें। इसलिए हमने ये मीटिंग आज मंगाई थी। हाँ वो सही बात है, वो मैंने उस पर देखा था, फेसबुक पर भी दिया हुआ था कि सोशल मीडिया में भी, लेकिन ये सारा फेक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर बनता है ये AICC से बनता है। जब तक खड़गे जी या वेणुगोपाल जी इसका ऑर्डर कोई निकालते नहीं है तब तक ये ऑर्डर नहीं माना जाता है, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट कोई हैसियत और कोई पावर नहीं रखता है। वो तो ब्लॉक प्रेसिडेंट को उसकी हैसियत नहीं है कि उसको निकाल सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात ही नहीं है। यह फैक्ट दिया हुआ है और जिसने भी ये डाला है वो आपस में हमें लड़ाना चाहता है और संगठन जो हमारा है उसको कमजोर करना चाहता है। मैं आपसे ये कहूँगा एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में जब काई साहब उड़ी से भाग गए, मैं अकेला एज ए वर्कर, वोटर हमारे वहाँ पर बहुत है लेकिन एज ए वर्कर में अकेला था जो तन तना वहाँ पर रहा। काई साहब सईबुतराल के लोगों तरफ से शिकायत भवान बनना आमद इलाकस में जायज फट दिया जमा करने से आमद इन आम लोगन थेरन थोरन मुश्किल से सपत ताहम से इंतजामिया तरफ आखुन का जोन बनी मकमी लोगों तरफ से इंतजामिया मांग करना आमद से इन वाले गठन संजीद कदम तुलनी युद्धन में लोगन थेरन थोरन मजीद मुश्किल सब्जे। हैरानगी की बात यह है कि इस दौर में, साइंसी दौर में और तरक्की के दौर में
आप ये पीछे देख रहे हैं मेरे, कितना डंप पे हुआ कूड़ा करकट यहाँ से चला नहीं जाता है। लोग दूर दूर भागते हैं, मास्क लगाने पड़ते हैं और लोग तंग आ गए हैं। यहाँ तो एक बहुत बड़ा डंप होना चाहिए था जहाँ गंदगी को फेंका जाए। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टाउन में ही इसका इंतजाम करना, हम भी तो लोग हैं, हम भी तो यहाँ बसते हैं। यहाँ लगभग 500 के करीब वोटर्स यहाँ रहते हैं। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारी सब सरकार तवज्जो नहीं दे रही है? यहाँ डंप करने की जगह ही नहीं है और फेंका जाता है नालियों में। अभी अभी तो सड़क की नालियाँ निकाली गई है एक तरफ से, वहाँ फेंका जाता है। क्यों? इस तरह से हम कई बीमारियों का शिकार लोग होते हैं और ऐसी बीमारियां जो बेड में लाइलाज हो जाती हैं। तो इसलिए सरकार से हम ये कहते हैं कि मेहरबानी करके देहात की तरफ भी तवज्जो दे। 90% आबादी जो है वो देहात में ही कश्मीर की रहती है। टाउन तो कोई टाउन ही नहीं है उंगलियों पर गिनने वाले। इसके लिए जब कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। सतराशाही श्रीनगर लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आमद एडवे इलाके में लूकन हिंद बापत इंतजामिया तरफ पब्लिक पार्क तैयार करने आमद ताहम छना अमित रावत शहर पर करने हवाले का कदम तुलना आमद यमकिन मुकैमी लोग आवलिन इसमें छनाई मुकैमी लोगों तरफ से इंतजामिया मांग करना आमद जात पार्क कुन गज खास जोन दुनियन युद्धन लूकन बुचिन वो मुश्किल दूर करनी है। मेरा नाम हिलाल अहमद मंडू है, मैं यहाँ सतराशाही में रहता हूँ। ये जो पार्क है ये मुझे भी हुआ अपना जो लाइफ है, मैं भी अब 60 की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने ये पार्क 60 से लेके आज तक ऐसे ही देखा है। अब सितमगढ़ी की बात यह है कि ये जो पार्क है यहाँ पे एक बड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल है और दाएं बाएं इंस्टीट्यूशन हैं और रेजिडेंशियल इलाके हैं। बदकिस्मती से यहाँ पे शाम को कुत्तों का बिल्कुल तांता जमा रहता है और जिस वजह से चलना बिल्कुल दुश्वार हो जाता है इस एरिया में। और नंबर 2, हम ड्रग्स के खिलाफ इस वक्त लड़ रहे हैं, हर एक जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पार्क है जहाँ कोई आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। तो इस वजह से अगर कोई दाएं बाएं से अराउंडिंग कोई आ रहा है किसी इलाके से, वो भी इस पनाहगाह में इसने पनाहगाह बनाई है और जो भी उसका कोई गैर जरूरी काम होता है वो यहाँ पे कर लेता है और उससे क्या है कि दाएं बाएं का माहौल खराब हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट से, सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये पार्क है और बाहर जो पार्क है, बाहर की तो पार्क को उन्होंने एस्टैब्लिश किया बहुत तरीके से, मगर मुझे एक बताइए, आप जो मेन रोड है सेक्रेटरीट का, ये जो उसकी नाक है जहाँ फुल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, नाक के नीचे इतना कूड़ा करकट होता है और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे सतकुजी हंदवारी के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन्ना आमदी अदवे मुकैमी सड़कें कुशादगी तो शहर पर हवाले तैयारी ब्रोह काम शुरू करना आई ताहम छना अल्ताम काम मुकम्मल करना आमद यमकिन सतकुजी का अस पे इलाकन में रोजन वाले लोकन कटा मुश्किल वेतन चवान मुकैमी लोगों तरफ से इंतजामियात मांग करना आमद जात मामला कुन गज जोन दुनियन युद्धन लोकन बुचन वो मुश्किल दूर करनी है। ये रोड 7 फुट कागजन मज दर्ज तो वनकस अगर वुचान ये रोड वनकस 18 फुट गेज वनकस कर तैयार था 18 फुटन मज वनकस मे बात 12 फुट गेज तैयार तो बहुत वन ये DC सबस LG सबस एडमिनिस्ट्रेशन वन बह मेहरबानी कर इन ठेकेदारस RNB डिपार्टमेंटस इन करो जल्द जल्द रबत कि यम रोड पोजिशन गई जल्द ठीक यमो गई त्रेड़ हम तो वजाड़ ओतर पाइप लगे सह बलाक ना बस मीर लक्ष्मपुर रोजान ये रोड 2019 पे ये चलान RNB तो ये रोड कड़ित जमीन पे थोड़ा बहुत ये मरम्मत कर थोड़ा बहुत तम पे कर पतमस वरिस मज 10 दिन कर 2 रेतन बेहान गर तम पे आये बे तो नीक नल बे नीक बंड पतमस वरिस मज ये वूक अनिक बंड तल पे फेरक बे कहें फयाज अहमद मीर लक्ष्मपुरा ये 2019 पे चलान ये ठेकेदार हफ्त कर 2 रेतन गर पे नड़ वड़ थनिस कड़ युथु बंद लागान बस नान पेमेंट करान
मुख्तलिफ फिल्म इंडस्ट्रियों तरफ ये फिर जम्मू कश्मीर को रुख करने से आमद तो वादी कश्मीर में तजमेरातम दौरान कईयान फिल्मन की शूटिंग अमल में अन्ना आई तक बद्रवास में फिल्म इंडस्ट्रियों तरफ पड़ाव त्रावला आमद के दौरान फिल्मन में काम करने वाले अदाकारों हिदायतकारों तो दोनों लोगों तरफ खुशी इंतजार करान वरना आओ जो जम्मू कश्मीर में फिल्मन की शूटिंग अमल में अनिंच सिंह वापस तथोई मसरत का मुकमी लोगों तरफ से खुशी इंतजार करान वरना आओ जो अंसूच तिमन के आंतोर जनक मौके फराहम सबदन मेरा नाम मुदस्सिर जफर है, मैं फिल्म का एक्टर हूँ। हम एक हिंदी फिल्म का शूट कर रहे हैं जिसका नाम है तुझे चाहूं मैं। ये एक लव स्टोरी है। हम लोग तकरीबन 15-16 दिन से यहाँ पे शूट कर रहे हैं बदरवा में, और हम लोगों ने बदरवा की डिफरेंट लोकेशन पे एक्सप्लोर किया है। आज हम लोग कंसर विलेज में शूट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है यहाँ की। यहाँ पे एक ढाबे का सीक्वेंस है और एक छोटा सा प्यारा सा घर है, वहाँ पे शूट कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा हमने गुलडंडा, छत्रगला, पदरी और भी कई सारी लोकेशन से शूट किया है। सभी लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। इससे पहले भी मैंने 2 फिल्म का शूट किया है यहाँ पे। लास्ट फिल्म जो थी नोबल थी, जिससे काफी सारे अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड मिले। और ये एक लव स्टोरी है जो इस लोकेशन को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती है। इस फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है, 3 गाने हैं और एक गाना हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं। इस फिल्म में जो एक्ट्रेस है उनका नाम प्रियंका है, और भी कई सारे एक्टर्स इसमें फिल्म में काम कर रहे हैं। बहुत ही पीसफुल है, जैसे कि आप सबको पता होगा। इनफैक्ट बदरवा बहुत ही पीसफुल जगह है, और ये फिल्म जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ के इकोनॉमी को और यहाँ के टूरिज्म को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी प्रमोट करने में, क्योंकि ये थिएट्रिकल रिलीज है जो ऑल ओवर इंडिया रिलीज होगी फिल्म। तो कोशिश यही है कि हम लोग इस जगह को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाएं पर्दे पे, ताकि टूरिज्म को मदद मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ की खूबसूरत वादियों में को एंजॉय करें। तो हम एक फिल्म कर रहे हैं तुझे चाहूं मैं, उसमें मैं लीड एक्ट्रेस का काम कर रही हूँ, और ये पहली बार मैं कश्मीर आई हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, और अब तक मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे शूट करके। लोकेशन काफी प्यारी है, काफी पीसफुल है, बहुत मजा आ रहा है। अब तक हमने गुलडंडा और भी काफी जगह एक्सप्लोर किए हैं। सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट पीसफुल प्लेस टिल नाउ आई हैव एवर कम अक्रॉस। बहुत मजा आ रहा है। शूटिंग जो यहाँ बदरवा में हो रही है, तो ये गाँव आज हम कंसर में शूट कर रहे हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि आप लोगों की वजह से हमारी जो बात है, हमारी जो डिमांड्स हैं बदरवा में बेरोजगारी वगैरह, वो दूर हो जाए, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुँचे, गवर्नमेंट तक भी पहुँचे। तो नाज़रीन, इस खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।